Yes, just can anyone inform me that we did the daffodils in the last class? As I remember, we did the daffodils. Are we to start Allama Iqbal today? Is as I remember. Just send me in the chat box so that we can just continue it. Or did we do the Allama Iqbal as well? Please send me in the chat box. Assalamu alaikum, students. Are you with me? Can anyone tell me that what we did or what we are to start today? As far as I remember, we completed daffodils and we are to start Allama Iqbal. Please see and tell so that I may not teach what I have already taught. Which exercise composition? Allama Iqbal's exercise composition? Okay, this was something which I gave you since it is already done in the notes. So we will proceed forward to the next lesson. If you see these ladies are giving you some idea. She is Lady Nusrat Harun, Begum Rana Liaquat Ali, Begum Jahara Shah Nawaz, Begum Shaista Ikramullah. What they used to do. Now this is the lesson which we are to read out today and study. Please keep one of the pencil or pen along with you and a book of English so that if there is a difficult word, you can just underline it or do something to it. The role of women in the Pakistan movement. The role of women, it's women in the Pakistan movement. You have already learned that Pakistan was established on 14th August 1947. आप पहले ही जानते हैं, सीख चुके हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया या बना। ये कब सीखा था? अल्लामा इकबाल में। और वैसे अगर देखा जाए तो आप डेफिनेटली बहुत अरसे से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। बिफोर दिस, इससे पहले द ब्रिटिश रूल्ड साउथ एशिया। बरतानिया पर किसकी हुकूमत थी जी? साउथ एशिया पर, सॉरी, साउथ एशिया पर, जनूबी एशिया पर किसकी हुकूमत थी? बरतानवी लोगों की, अंग्रेजों। आफ्टर अबाउट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल, तकरीबन 100 साल तक जब गोरा हम पे हुकूमत करता रहा, बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, दोनों हिंदू और मुसलमान जो कि इंडिया में रहते थे, रेज्ड दैट दे मस्ट रिकवर देयर इंडिपेंडेंस। उनको ये लगा, उन्होंने ये सोचा कि उनको अपनी आज़ादी रिकवर करनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए, जो कि अब वो क्या थे? गुलाम थे। किनके गुलाम थे? अंग्रेजों के। Better check your device from my side. The voice is okay. Please do see from your side if there might be some problem from you. And do away with the rule of British. Do away, यहाँ पे छुटकारा हासिल करना। In the beginning, शुरुआत में, both the Hindus and the Muslims work together. शुरू में दोनों मुसलमान और हिंदू इकट्ठे काम करते रहे to drive the British from India, ताकि बरतानवी लोगों को इंडिया से भगा दे।
together इकट्ठे they formed a political party called Indian National Congress, जिसका नाम उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा. But soon, लेकिन जल्दी, the Muslims realized, मुसलमानों को ये एहसास हुआ, अंदाजा हुआ, that the Hindus who were in majority in the Congress, जो कि मेजॉरिटी में है, यानी कि उनकी तादाद ज्यादा है कांग्रेस में, as well as in the country और मुल्क में भी, would never give equal treatment to the Muslims and would not share the fruit of independence with them. उनको ये अंदाजा हो गया कि वो उनके साथ बराबरी नहीं करेंगे, बराबरी के हकूक नहीं देंगे, and would not share the fruit of independence with them. और उनको ये भी अंदाजा हो गया कि जो आज़ादी है उसमें से फ्रूट का मतलब ये नहीं कि फल देना है, यहाँ पे फ्रूट का मतलब है उनको वो हिस्सा जो उनका मिलना चाहिए मुसलमानों का, वो उनको नहीं मिल पाएगा. और मिलना भी नहीं था. उसकी रीजन क्या थी कि वो लोग तादाद में हिंदूज इंडिया में ज्यादा थे और मुसलमानों की तादाद कम थी. सो दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी. इसलिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक अपनी सियासी जमात का आगाज किया. एंड कॉल्ड इट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. और इस पार्टी का नाम क्या रखा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. Many Muslim leaders who had earlier joined the Congress party now left it and became members of Muslim League. अब होता ये है कि ज्यादातर जो लोग थे, जो मुसलमान थे, जो पहले ऑल इंडिया इंडिया नेशनल कांग्रेस में चले गए थे, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर. In 1934, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना became its president. 1934 में वो जिन्ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो इसके सदर बने. The Muslims being united on a common platform, मुसलमान एक मुत्तहद हो गए एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर, अंडर हिज एबल गाइडेंस एंड लीडरशिप. कायदे की बहुत ही काबिल गाइडेंस, रहनुमाई और लीडरशिप, उनकी जो वो जो लेके चल रहे थे लोगों को. नाउ स्टार्टेड देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट टू बी कॉल्ड पाकिस्तान. उन्होंने जदोजहद शुरू की ताकि एक अलहदा मुसलमानों के लिए वतन बना सके. बेटा यहाँ तक कुछ पूछना हो? आई गेस यू नीड नथिंग टू आस्क. चलिए कंटिन्यू करते हैं. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द ब्रिटिश रियलाइज. मुश्किल था कि बरतानवियों को ये चीज रियलाइज कराई जाती that they had to consider the demands of Muslims before they decided to give independence to India. मुश्किल काम था कि अंग्रेजों को ये रियलाइज कराया जाता, बावर कराया जाता कि इससे पहले कि वो इंडिया को आज़ादी दें, उनको मुसलमानों की जो मुतालबात हैं उनको भी पूरा करना है. A long and hard struggle followed. एक बहुत लंबी, बहुत सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ी. Not only did the men take part, ना सिर्फ आदमी इसमें हिस्सा ले रहे थे, but women also actively participated in this glorious struggle. इस शानदार जद्दोजहद में औरतों ने भी भरपूर साथ दिया. At that time, उस वक्त, आज women were in strict पर्दा. मतलब वो ये बात आप जानते होंगे कि उन दिनों में जो खवातीन थी हमारी, वो सख्त पर्दे में रहती थी, पर्दा करती थी, बुर्का लेती थी. They were less educated. हमारी खवातीन के पास तालीम इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी हिंदुओं के पास थी. एंड लेस पॉलिटिकल अवेयर देन द हिंदू वुमेन.
और जितना ख़वातीन हिंदुओं की अवेयर थी सियासी तौर पर, उतनी हमारी ख़वातीन नहीं। बट देयर वर नंबर ऑफ ब्रेव एंड सेल्फलेस वुमेन, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन थी जो बहादुर थे, सेल्फलेस, जो अपनी परवाह नहीं करती थी। Who in spite of these hindrances, hindrance कहते हैं बेटा रुकावट, इन तमाम रुकावटों के बावजूद came forward, वो आगे आई and worked for this noble cause, और इस अजीम कॉज के लिए उन्होंने काम किया। साइड बाय साइड विद मेन, शाना बशाना आदमियों के, दे फॉर्म्ड, उन्होंने बनाया द वुमेन्स ब्रांच ऑफ मुस्लिम इंडिया लीग टू ऑर्गेनाइज विमेन। खवातीन को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक ब्रांच बनाई खवातीन के लिए मुस्लिम लीग में ही, एंड इन्फॉर्म देम अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, और ताकि उनको ये बता सके कि इस वक्त जो मुल्क की सियासत है वो कैसी हो रही है। दे ट्रेवल्ड टू द कंट्री साइड टू टेल विमेन देयर, वो देहातों में गई ताकि खवातीन को बताएं व्हाट दे शुड डू, उनको क्या करना है। दे ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग्स, उन्होंने समाजी तौर पर इज्तिमात का इंतजाम किया। इज्तिमात मीन जलसे जुलूस। एंड एड्रेस लार्ज गैदरिंग्स फॉर वुमेन, और खवातीन के लिए और बहुत बड़े बड़े इज्तिमात से उन्होंने खिताब किया। दे ऑल्सो टुक पार्ट इन पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय मेन, इसके साथ साथ जो आदमी मुख्तलिफ जलसे करते थे वो उसमें भी जाती थी। एंड मेड स्पीचेस बिफोर लार्ज ऑडियंसेस, और वहां पे मौजूद बहुत बड़े बड़े जो लोगों के इज्तिमात होते, उसमें वो स्पीचेस किया करती थी, तकरीरें करती थी। दे मेट वाइव्स एंड डॉटर्स ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द वाइसराय, बरतानी अफसरान की बीवियों से भी मिली और वाइसराय की बीवी से भी मिली। एंड मेड देम रियलाइज, और उनको ये समझाने की कोशिश की, पावर कराने की कोशिश की, दैट देयर डिमांड वाज जस्ट, कि उनकी जो डिमांड, उनका जो मुतालबा है जस्ट, वो बिल्कुल इंसाफ पे मबनी है। दे ओपन क्लासेस इन देयर ओन होम्स, उन्होंने अपने घरों पर क्लासेस का पढ़ाने का इंतजाम किया, टू एजुकेट मुस्लिम गर्ल्स, ताकि मुसलमान लड़कियों को तालीम दे सकें। समटाइम्स, कभी कभी, द पुलिस वुड यूज टीयर गैस एंड वुड लाठी चार्ज द वुमेन्स मीटिंग्स, टीयर गैस कभी छोड़ देती थी और कभी कभी लाठी यानी कि स्टिक से मारा करती थी खवातीन को मीटिंग में। एनी वन अरेस्ट देयर लीडर्स, और कभी कभी उनके जो बड़े होते थे उनको अरेस्ट भी कर लेते थे। बेटा कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, एक और पैरा हमने पढ़ लिया है। चलिए, नहीं है क्वेश्चन। They encourage their brothers, husbands and sons not to give up the struggle until their goal is achieved. हिम्मत दिलाते थी वो अपने भाइयों को, शोहरों को, बेटों को, गिव अप, हार नहीं माननी इस जद्दोजहद में जब तक उनका गोल, मकसद पूरा नहीं हो जाता, अचीव, हासिल नहीं हो जाता। Among such selfless and courageous women, इन तमाम बेगर्स और हिम्मत वाली खवातीन में, द नेम ऑफ एज्ड आब्दी बेगम, उनमें एक बूढ़ी खातून जिनका नाम आब्दी बेगम है, पॉपुलरली नोन एज बी अम्मा, जो को आमतौर पर याद की जाती हैं, जानी जाती हैं बी अम्मा के नाम से, लीड्स द रेस्ट, सबसे सारे फहरिस्त है। बी अम्मा वाज द मदर ऑफ मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली, ये इनकी माँ थी। टू ब्रेव एंड नोबल ब्रदर्स, दो बहुत ही आला और बहादुर भाई, who devoted their lives to the cause of Muslims, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मुसलमानों के इस मकसद के लिए वक्फ कर दी। When in this struggle, the two brothers were arrested, जब दोनों भाई अरेस्ट कर लिए गए, brought to trial, उनको
ट्रायल किया गया एंड इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years और उनको 2 साल के लिए कैद में डाल दिया. She sent a word to them. माँ ने उनके लिए पैगाम भेजा. Not to give up their cause. अपनी जद्दोजहद से पीछे मत हटना. And not to ask for pardon और ना ही माफी मांगना. Which was the condition of their release. जिसकी वजह से वो बच सकते थे या छूट सकते थे. The Amma had not been to school or college. ना वो कभी स्कूल गई ना वो कॉलेज गई. Her greatness lies in the fact. उनकी जो अजमत है वो इस हकीकत में पाई जाती है that she had taught her sons to be willing to sacrifice their lives in the cause of Muslim independence. उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि चाहे उनकी जिंदगी कुर्बान हो जाए मुसलमानों की आजादी के लिए कुर्बान कर दे. And later encouraged them to accomplish their goals. और उनका जो गोल था मकसद था उसको हासिल करने में उनकी मदद भी की. बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन? Any question if is there you may ask. It seems no question. It seems no question. So we'll continue. Another lady, एक और खातून, worthy of our admiration is बेगम मोहम्मद अली. एक और खातून है जो कि हमारी तारीफ के काबिल है. उनका नाम बेगम मोहम्मद अली है. ड्रेस्ड इन बुर्का, बुर्का पहना करती थी. She not only attended men's public meetings, ना सिर्फ वो आदमियों के मीटिंग्स में जाया करती थी, but also was the first Muslim woman to address them. पहली खातून थी जिन्होंने पहली दफा मर्दों से खिताब किया. She spoke in simple words and in natural tone. वो सादा सी ज़बान में बात कर रही थी और अपनी जो नेचुरल टोन है उसमें बात कर रही थी, but very effectively. लेकिन बहुत effectively भी बड़े अच्छे अंदाज से जिसका असर हुआ. She also wrote for the press. वो अखबार के लिए लिखा भी करती. Her opinions were highly respected and the Qaid-e-Azam held her in great esteem. उनकी बहुत तारीफ करते थे कायद-ए-आज़म और उनकी जो ओपिनियन है उसको बहुत इज्जत है. When she was to address women's meetings, large crowds would gather to hear her. बड़े-बड़े इज्तिमात जमा हो जाते थे जब वो बोलने वाली होती. Men and women honored her alike. आदमी और औरतें दोनों उनको पसंद करते. Then there was Miss Fatma Jinnah, whom the grateful nation later called Madre Millat, Mother of Nation. फातिमा जिन्ना जिनको बाद में हम मादरे मिल्लत के नाम से भी जानते हैं. She helped her brother in the struggle for establishment of Pakistan. पाकिस्तान बनाने में उन्होंने अपने भाई की बहुत मदद की. It was through her that the Muslim women were able to seek कायद-ए-आज़म्स guidance. वो कायद-ए-आज़म की जो गाइडेंस रहनुमाई थी वो इन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाई मुस्लिम औरतों के लिए. And to have interviews with them और उनके इंटरव्यू ले सके. Being more politically informed, चूंकि वो ज्यादा जानती थी सियासत को, she passed on her information to other women. वो अपनी तमाम इत्तलात दूसरों तक मुंतकिल करती. In addition to this, इसके साथ-साथ she looked after her illustrious brother. उनके जो भाई जो बीमार थे उनकी भी मदद, उनका भी ख्याल रखती. चलिए बेटा एक और पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया है. कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लीजिए. राइट नहीं है. Begum Rana Liaquat Ali worked as an honorary secretary and typist to Liaquat Ali, her husband, at a time when Muslim League could not afford the salary of a secretary.
सेक्रेटरी की सैलरी देने के लिए मुस्लिम लीग के पास पैसे नहीं थे। उस वक्त बेगम राना लियाकत अली खान थी, जिन्होंने सेक्रेटरी का और टाइपिस्ट का काम किया अपने शौहर के लिए, लियाकत अली खान के लिए, ऑनररी, मतलब जिसमें पैसा नहीं लिया जाता। She arranged parties where Muslim women could meet the wife and daughter of the viceroy। उन्होंने पार्टीज का एहतमाम किया जिसमें खवातीन जो हैं, मुस्लिम खवातीन जो हैं, बीवी और बेटी से मिल सकती थी वाइसरॉय की। सो एज टू एक्सप्लेन देम द साइड ऑफ द मैटर, वो उनकी तरफ से जो मसाइल हैं उनको बयान कर सके। एंड एक्सप्रेस, और ये एक्सप्रेस कर सकें, ये बता सके देयर प्रोटेस्ट, कि उनका क्या प्रोटेस्ट है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रही है। Obviously, the reason of the protest was to have a separate state for the Muslims. She also organized the women voluntary service। उन्होंने खवातीन के लिए वॉलंटरी सर्विस का भी आगाज किया। एंड लेटर द विमेंस नेशनल गार्ड्स, और खवातीन के लिए बेटा पहले एनसीसी होती थी लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए नेशनल गार्ड्स होते थे, जिसमें समझ लीजिए फौजियों के तर्ज की ट्रेनिंग दी जाती थी, डिसिप्लिन सिखाया जाता था। कंसिस्टिंग ऑफ 3 battalions with 2400 girls। 3 बटालियंस थी, उसमें 2400 लड़कियां थी। ये बटालियन हम लोग वर्ड यूज करते हैं आमतौर पर जो फौजी दस्ते होते हैं। आप 4 तरह के समझ लीजिए ग्रुप्स हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और चार्ली। इन विच शी हरसेल्फ हेल्ड द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर। यहाँ पे उनके पास जो रैंक था वो क्या था, ब्रिगेडियर का। इन सिंध में भी the work of awakening the Muslim women was carried out by Lady Nusrat Harun। शुरू में हमने तस्वीर देखी इनकी, एक खातून है जिनका नाम लेडी नुसरत हारून है। उन्होंने खवातीन को जगाने में मदद की, मुसलमान खवातीन को। लेडी सुगरा हदायतुल्लाह दूसरा नाम है, बेगम खैरुन्निसा सुबहान तीसरा नाम है, शाबान, एंड मिस फखरुन्निसा वली मोहम्मद अफंदी तीसरा नाम है। लेडी हारून was a spirited woman of upright character, एक बहुत ही शानदार किरदार वाली और बहुत जज्बे वाली खातून थी। एंड अ काइंड ऑफ होस्टेस मीन मेजबान। हर हाउस इन कराची बिकेम द सेंटर ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज। खवातीन के जितने भी एक्टिविटीज होती थी सियासी तौर पर, कराची में उनका घर उसका मरकज था। एंड इट वाज अ प्लेस ऑफ वेलकम टू ऑल द मुस्लिम लीग वर्कर्स when they came to Karachi to attend meetings। so, जब भी मुस्लिम वर्कर कराची में आते थे किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उनके घर पर ही ठहरते थे। Classes were also held in her house to educate Muslim girls। जो मुसलमान लड़कियां थी उनको तालीम देने के लिए उनके घर पे क्लासेस भी रखी जाती। लेडी हदायतुल्लाह traveled throughout Sindh holding women's public meetings। खवातीन के जो इज्तिमा थे उनको वो होल्ड करती थी, पूरे सिंध में हो जाती थी। द फर्स्ट पब्लिक मीटिंग ऑफ वुमेन इन सिंध वाज हेल्ड इन कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन। चिड़ियाघर जो है वहां पर ये पहला इज्तिमा किया गया था। These 3 ladies led the anti-British procession में जुलूस, उन्होंने ब्रितानवी मुखालिफ जो जुलूस थे उनको लीड किया था। लेडी सुगरा हदायतुल्लाह एंड बेगम खैरुन्निसा शाबान also led processions in लाहौर। लाहौर में ये 2 खवातीन जो इज्तिमात को लेकर चलती थी। एंड सक्सीडेड इन होस्टिंग द मुस्लिम लीग फ्लैग ऑन द सेक्रेटेरिएट। और पहली दफा इन्होंने मुस्लिम लीग का फ्लैग जो है वो सेक्रेटेरिएट पर लहराया। बेगम जहां शाहनवाज फ्रॉम द पंजाब represented the Muslim women at the 3 round table conference held in London। लंदन में तीन गोल मेज कॉन्फ्रेंस में, जो कि तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर जाकर उन्होंने मुस्लिम लीग की खवातीन को रिप्रेजेंट किया। एंड द फर्स्ट वुमेन एवर टू मेक अ स्पीच इन लंदन गुइल्ड हॉल। ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर पहली दफा इन्होंने स्पीच की थी एक खातून होते हुए। She also traveled widely and explained to the people of other countries। वो बहुत दूर दूर तक गई और दूसरे मुल्कों की लड़कियों खवातीन को बताती रही, लोगों को बताती रही। Why the Muslims in India wanted a separate state, के मुसलमानों की जो लोग हैं यहाँ पर इंडिया में उनको क्यों अलग वतन चाहिए।
Other women who played an active part in the struggle of independence are, इनके अलावा जो दूसरी खवातीन हैं जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया इस जद्दोजहद में, वो हैं बेगम इकबाल हुसैन, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, गीती आरा बेशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह, बेगम बखारुन्निसा नूर, बेगम नवाब मोहम्मद इस्माइल नूरुस्सबा, बेगम एंड फातिमा शेख ऑफ हैदराबाद से। बेटा जी आज का ये लेसन हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज एक नजर देख लीजिएगा पूरे के पूरे लेसन को। आई एम गिविंग यू लीस्ट 2 minutes एंड आई एम काउंटिंग 2 minutes. आई विल बी जस्ट टॉकिंग टू यू आफ्टर 2 minutes. चलें बेटा, इट सीम्स देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। एक और छोटा सा काम आप लोगों ने करना है। अगेन आई विल गिव यू सम टाइम। टेक्सचुअल स्टडी, स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड लुक अप देयर मीनिंग्स इन डिक्शनरी। आप खुद देखेंगे, मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनाइज, इंतजाम करना। अचीवमेंट, इस चीज को हासिल करना। इम्प्रिजन, जेल में रख कर देना। रिलीज, छोड़ देना। इंटरव्यू, इंटरव्यू करना है। अकम्प्लिश, हासिल करना। इंफॉर्मेशन, इतला। स्ट्रगल, जद्दोजहद। एक्टिव, बहुत ही जैसे कहते हैं आप कुव्वत से, ताकत से, बहुत पुरजोश अंदाज में। यूज ईच ऑफ द अबव वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस को बनाने हैं इनके। 5 सवाल हैं। माय गेस दो वर्ड्स अगर मुझे मिल जाए आप लोगों की तरफ से तो वी कैन हैव द आंसर। So I give you 5 minutes so that you can have these 2 words from the text to make the answers of these questions. Have your time, 5 minutes. It's 4. I'll be talking to you again at 9. Beta, I haven't given you homework at the moment, right? Who was B Amma? Why is she remembered till today? आपके पास बहुत आसान सा जवाब है। बी अम्मा was the mother of Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali, who were the 2 heroes who got imprisoned. Lekin when they were in the jail, the mother was too good that she sent them the word कि sacrifice अपनी लाइफ भी करनी पड़े तो कर लेना, लेकिन मुसलमानों की कॉज को sacrifice नहीं करना और माफी नहीं मांगना। बीएमआ की एक और भी खासियत है कि that she never went to college or school, but she taught her children and she sent them to school and be good Muslims to sacrifice their lives. How did the Muslim women work for independence? बेटा आपके पास खवातीन के बारे में वो स्पीचेस करती थी, इज्तिमात में जाती थी, लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, उनका मुकाबला करती थी, उन पे पर्दे में होने के बावजूद उन पे लाठियाँ चलाई जाती थी, टीयर गैस का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो हर चीज का मुकाबला करती थी। Why is Miss Fatma Jinnah called Madre Millat? Miss Fatma Jinnah is called Madre Millat. अगर आपने ये वाले पैराग्राफ पढ़ लिया है तो आपके पास she helped her brother in the struggle for the establishment of Pakistan. It was through her that the Muslim women were able to seek guidance and to be the, यहाँ पे भी अगर आप देख लेते हैं पॉलिटिकल ज्यादा इन्फॉर्म थी, तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनको हम मादरे मिलत के नाम से जानते हैं। और अपने भाई की भी खिदमत किया करती थी, क्योंकि वो जब बीमार थे तो उनका कोई देखभाल के लिए नहीं था, तो उनकी बहन किया करती। What is the meaning of Madre Millat? Madre Millat means mother of nation. In Sindh, where did the first meeting of mother of nation? Yes, of course. In Sindh, where यहाँ पे लिखा भी है बेटा, ये देख सकते हैं, मदर ऑफ नेशन। In Sindh, where did the first meeting of women take place? कहाँ पे पहली मीटिंग हुई थी? हमने ये पढ़ा है यहाँ पर
सिंध में जोलॉजिकल गार्डन कहीं पे वर्ड यूज हुआ था. यस, हियर इट इज इन कराची जोलॉजिकल गार्डन. चलिए ये वाला हो गया. टेल इन 5 sentences कॉम्पोजिशन पे आइए बेटा. देखिए टेल इन 5 sentences व्हाट यू नो अबाउट राणा लियाकत अली खान. लेट अस डू इट टुगेदर. आप बेटा अपने सेंटेंसेस जो है वो एक एक करके भेजते रहिए. eventually we are 6 or 7, हमारे पास 5 sentences आ जाएंगे. Send that sentence in the chat box. I'll tell rest of the students so that they can copy it. By this we will all have 5 sentences each working together. Right, only 2 sentences I have received. One is Begum Riana Liaquat Ali Khan worked as an honorary secretary and typist to Liaquat Ali Khan. जी बेटा, आपकी जो कॉपी है नोटबुक है उसमें करने हैं. Only I received only 1 sentence. I wanted everyone to participate. Send me the sentence. If all students are sending 1 sentence, eventually we will have this question solved here. What else did she do? ओके, ठीक है. आपको ये बेटा 2 चीजें मैं बता रहा हूँ, आपको ये अपने पास खुद करना है. नंबर 1, दिस कॉम्पोजिशन, एंड द सेकंड थिंग इज राइट इन ओन वर्ड्स अ पैराग्राफ on women's role in independence movement. आप ये खुद करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है. आप अगर इस लेसन को पढ़ लें
तो इस लेसन के जरिए ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक और सेंटेंस आया है, एक ही बच्चा में हमें स्टूडेंट हमें लिख के भेज रही है। शी अरेंज पार्टीज वेयर मुस्लिम women could meet the wife and daughter of the viceroy. Good. She arranged parties where Muslim women could meet the wife and the daughter of the viceroy. और कुछ? जी बेटा। बेटा नोटबुक में, हाँ कॉपी में करने हैं। कॉपी नोटबुक में कहता हूँ, एक्चुअली नोटबुक होता है, कॉपी हम अंदर पे यूज करते हैं, बट इट्स नोटबुक। जी, हर चैप्टर के सेंटेंसेस करने इन नोटबुक, सो दैट यू कैन लर्न द थिंग्स। और ये करने हैं 5 सेंटेंसेस बेगम राना राना लियाकत अली पर, और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है वुमेन पर। ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि क्लास में भी हो सकते हैं। ये ब्लैंक्स बेटा जल्दी से कर लीजिए जरा। आपके नोट आपके पास बुक मौजूद है, पहले ये 3 करिए, 4 करिए, उसके बाद ये 4 5 करिए, जल्दी से करिए। बेटा जो मैं वर्क बता चुका हूँ बैक पे, वही आपको उसमें कॉपीज में करना है। क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाएंगे। ये सेंटेंसेस हैं जिनको आपने करना है, वर्ड्स हैं, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। कॉम्पोजिशन का चैप्टर 1 और 2 आप नोटबुक में करेंगे, जो कि खुद करना है। इनको छोड़ दीजिए पेज 50 को, पेज 51 पे ये जो चीजें हैं इनको करना है। और ये भी अभी हम नेक्स्ट क्लास में इनको सबको डिस्कस करेंगे अलोंग विद दिस। मुझे याद कराइएगा कि हमने ये लास्ट जो पेज है, पेज नंबर 54, वो डिस्कस नहीं किया, ताकि हम इसी को डिस्कस करते हुए फिर आगे चल सकें। आपके पास ये देख लीजिए फर्स्ट सेंटेंस। व्हेन हिज पेरेंट्स left for Europe, he was dashed by his grandmother. He was looked after. He was look after यहाँ पे लिखा है, इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे आप looked after. He was looked after बेटा। Second, your pocket carefully. Look into your pocket carefully. Look into your pocket carefully. तीसरा, don't look out of the car window. Don't look out of the car. तीसरा, good. Number 4, the parents, the missing child everywhere. Looked for the parents looked for the child everywhere. ठीक है बेटा, हम यहाँ पे अपनी क्लास को आज के लिए एंड करना चाहेंगे। आपके पास एक और एक्सरसाइज होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, 2 चीजें बल्कि दे रहा हूँ होमवर्क में, इनको भी आपने करना है। आपके पास नंबर 4 दिस वन एंड नंबर 5 दिस वन, दिस हैज टू बी डन बाय यू। फ्रॉम माय साइड आई एम जस्ट फिनिशिंग अप द क्लास।
I hope that we are going to have another class in the coming week, online class again. Thank you very much. Stay blessed. God bless you.